Hello dear students, welcome to Enlight English. My name is Anubhuti Shrivastava and today I am here to teach you notice writing. Children, as you already know that I have started the series Advanced Writing Skills, and in that I have already taught you poster, and today I have taken up notice writing, which is another short composition of your section B, and which is of 4 marks. And children, I would like to tell you that this is the detailed video for notice writing. So if you are new to my channel, please do subscribe my channel so that you will get all the notifications, because I'll complete the syllabus. And do like my video, share it, and drop in your comments whatever you feel like. And if you have not watched my previous video, please go and watch it. I have already started this series, and before that so many videos have already uploaded, so please do watch it for the better understanding of the syllabus. And so today we're going to start notice writing. So children, let me tell you that notice writing is a short composition which is of 4 marks, and this is question number 3 of your question paper. Like, you have section A, then then it will be question number 3, which is section B, and this will you will get choice in this. So you have 4 short compositions, and one by one I will taught every point and everything I'll teach you. So this is the second one. So first of all, we have come to know, we should know, like, what is notice? What is a notice writing? Why do we write a notice? So as a general definition, I would like to say that notice is a formal means of communication. It is a formal means of communication. We can say that the purpose of a notice is to announce, or you can say display information to a particular group of people. So in general way, we can say that notices are generally meant to be put up on specific display boards, whether in school or in public places. It is issued by the government, appear in newspaper. So notices जो होते हैं वो एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं. मतलब अगर हमें अपनी कोई चीज़ किसी तक पहुंचानी है तो एक जनरल नोटिस हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को वो पता चल जाए, एंड दे विल नोटिस दैट, मतलब उस सूचना को वो पढ़ें और पढ़ने के बाद जो भी उसमें लिखा है उसको फॉलो करें. इसके कुछ इसका कुछ प्रॉपर फॉर्मेट होता है, कुछ प्रॉपर टाइप्स होते हैं. सो धीरे धीरे हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. I request you to watch the full video, then only you'll able to understand it more clearly and properly, because this is the detailed video for notice writing. So first of all, I would like to tell you the introduction, as I've already told you the definition. So notice writing is generally used in schools, organization, गवर्नमेंट बोर्ड एक्सेट्रा. मतलब ये स्कूल में यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है, हर जगह भाई आए दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कोई ना कोई सूचना लोगों तक पहुंचानी होती है. तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम जाके हर एक व्यक्ति को पर्सनली बोलें. तो हम एक डिस्प्ले बोर्ड पे एक नोटिस लगा देते हैं या पेपर में निकलवा देते हैं, या जनरली किसी ऑर्गेनाइजेशन कहीं जहाँ पर भी होता है वहाँ पर एक नोटिस लगवा देते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक वहाँ के सारे लोग उसको देख लें, एंड दे विल नोटिस उसे देखें और उसको समझ लें. अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? वाई टू यूज़? टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट वेरियस इवेंट्स, इशू एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस. मतलब नोटिस को हम क्यों नोटिस लोगों को देते हैं? क्योंकि हमें लोगों को बताना होता है, जैसे कोई इवेंट हो रहा है, कोई पब्लिक इंस्ट्रक्शंस हो रहा है, जैसे आप कह सकते हो कोई जैसे यहाँ पर है कोई मीटिंग हो रही है, कोई इवेंट है, कुछ लॉस्ट एंड फाउंड है, मतलब कुछ खो गया है या आपको कुछ मिला है, कोई अपील हो सकती है, कोई वार्निंग हो सकती है, टूर्स के लिए हो सकता है, कैंप्स के लिए हो सकता है, एग्जीबिशंस के लिए हो सकता है, यू हैव टू चेंज योर नेम. आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एक नोटिस देना पड़ता है. जब तक आप नोटिस नहीं देंगे, वर्बल कुछ भी, यहाँ पर आप जानते हैं कि वर्बल कोई भी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है जब तक आप उसको रिटन में ना दें. तो ये एक तरीका है, इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग, एक एडवांस राइटिंग स्किल है जिसको आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे. सो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं.
इसका फॉर्मेट, सबसे पहले फॉर्मेट मस्ट इंक्लूड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हेडिंग, डेट, वर्ड नोटिस, राइटर्स नेम एंड पोस्ट। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड होगा। उसके फॉर्मेट में एक और दिमाग में रख लीजिए चीज़ कि यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स। जितने भी शॉर्ट कॉम्पोजिशन है, दीज ऑल शॉर्ट कॉम्पोजिशन शुड बी विद इन द बॉक्स। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या इंक्लूड करेगा आपका? फॉर्मेट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले जो इस इंस्टीट्यूशन या जो गवर्नमेंट बोर्ड या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस नोटिस को इशू कर रही है, सबसे पहले टॉप पे, बॉक्स के ऊपर सबसे टॉप पे आप क्या लिख देंगे? उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? हेडिंग है, डेट है, नोटिस है। लाइक उसके जस्ट नीचे मैं अभी एक आपको फॉर्मेट भी बना के दिखा दूंगी। उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे वर्ड नोटिस, जो कि आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, और डेट का फॉर्मेट मैं अभी बता दूंगी आपको किस तरीके से लिखना है। आपको नॉर्मली ऐसे स्लैश करके डेट्स नहीं डालनी है। उसके बाद आप अपना टाइटल देंगे, हेडिंग देंगे, एक कैची हेडिंग देंगे कि वो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो नोटिस है, कोई इवेंट हो गया, कोई आपका कोई टूर हो गया, या कोई एग्जीबिशन से रिलेटेड है, जो भी टाइप ऑफ नोटिस है आपका, उसके लिए एक आप एक कैची हेडिंग देंगे। इसके अलावा लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में जो नाम दिया है तो आप वही नाम लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो यू कैन राइट XYZ, अपना नाम आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे एंड यहाँ पे आपका फॉर्मेट जो होगा वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका कंटेंट जो आपका मिड का पार्ट आता है, जहाँ पे आपको कंटेंट लिखना होता है, उसमें आपको क्या क्या लिखना होगा? उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कोई क्वेश्चन, उसमें आपको बेसिकली 5 W's पे काम करना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु और whom। इन 5 W's पे काम करना है। और इसके अलावा हाउ, सो मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेयर इट विल टेक प्लेस, या आप कह सकते हैं व्हेन इट विल टेक प्लेस। कोई इवेंट है तो वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किसको आना है, किससे कांटेक्ट करना है। ये सारे W's पे अगर आप एक बार दिमाग डाल लेंगे तो आपको नोटिस लिखने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद एक्सप्रेशन जो है ये रिलेट करता है, इट रिलेट्स टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेवेंस ऑफ द कंटेंट बिसाइड्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। मतलब ये आपको 5 W's पता चल गए। अब 5 W's पता चल गए तो उन वर्ड्स को आप एक सेंटेंस बना करके लिखोगे ना, आप एक सेंटेंस प्रॉपर एक कंटेंट लिखोगे तो उसमें एक्सप्रेशन आपका ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और आप कह सकते हो फ्लुएंसी को दिखाता है। ये जो मार्किंग स्कीम है ना, फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। फॉर्मेट ये आपका 1 मार्क्स का है, जो आपका सबसे पहले वाली चीज़ है। फिर कंटेंट आपका 2 नंबर का है, जिसमें आपको सारे W's बताने हैं और प्रॉपर एक कंटेंट लिखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सप्रेशन होगा, जिसमें आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। वहाँ पे आपकी स्पेलिंग्स देखी जाएंगी, आपके टेंसेस करेक्ट हैं कि नहीं, आपने नाम वगैरह सही लिखा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये सारा मिला के आपका कितने का हो जाएगा? 4 मार्क्स का। सो आई होप दिस मार्किंग स्कीम इज क्लियर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने होते हैं। वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू इट अगेन। प्रेजेंट द नोटिस विद इन द बॉक्स। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या करना है? नोटिस बनाने से पहले एक बॉक्स बना लेना है। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो या जब आपको आंसर शीट मिले, हम हमेशा फ्रेश पेज से नोटिस स्टार्ट करो। चाहे नोटिस हो, चाहे लेटर हो, व्हाटएवर कॉम्पोजिशंस यू आर गोइंग टू डू, इट शुड बी स्टार्ट विद अ फ्रेश पेज। आप कभी भी कोशिश करिए कि वो फ्रेश पेज से स्टार्ट हो। सो यू हैव टू प्रेजेंट इट विद इन अ बॉक्स। तो वो बॉक्स आप पेंसिल से बनाइए, बाद में आप उसको पेन से भले ही ड्रॉ कर दीजिए, मगर पहले पेंसिल से बनाइए, क्योंकि आपको उस समय पता नहीं रहता है कि आपका वो नोटिस कितना लंबा जाने वाला है। तो यू जस्ट एक अंदाज से यू जस्ट मेक अ बॉक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे? यूज वर्ड नोटिस फॉलोड बाय द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन।
सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, तो आप पहले अपने स्कूल का नाम सेंट जेवियर स्कूल्स कोलकाता, आगरा, जो भी है कॉमा करके वो नाम लिख देंगे। उसके जस्ट नीचे मिडिल में आप क्या लिखेंगे? नोटिस, NOTICE कैपिटल लेटर्स में आप नोटिस लिखेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे आप? राइट द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और वो किस तरीके से लिखेंगे? जैसे अगर 18 जून 2020 आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आप डेट कभी भी 18-11-20 ऐसे नहीं लिखेंगे। दिस इज द ओल्ड फॉर्मेट, आपको न्यू फॉर्मेट में ऐसे ही डेट लिखनी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। डेट लिखने के बाद फिर उसके जस्ट नीचे आके आपको गिव अ सूटेबल हेडिंग टू द नोटिस। यू हैव टू गिव अ सूटेबल हेडिंग टू द नोटिस। नोटिस को एक सूटेबल हेडिंग देनी है। जैसे नोटिस किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, जैसे फ्री बुक्स, इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, या लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है, या आप कह सकते हो कि कोई कुछ चीज़ मिसप्लेस्ड होने का हो सकता है, कोई किसी देश का कोई सेलिब्रेशन डे हो सकता है, यू कैन से वर्ल्ड डांस डे सेलिब्रेशन, या कुछ भी हो सकता है, वो आपको हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आप कंटेंट में आएंगे। कंटेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग। कंटेंट जो है, जो भी जैसा भी क्वेश्चन है, अगर वो लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में है तो कब खोया, कैसे खोया, कहाँ खोया, क्या टाइम था, कलर क्या था, वो सारी चीज़ों का वो सब चीज़ें आपको ज़रूर बतानी है। इंपॉर्टेंट डब्ल्यूज पे ध्यान ज़रूर देंगे। इसके अलावा कोई इवेंट है तो इवेंट का नाम, कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन आएगा, किससे कांटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप कंटेंट में ज़रूर लिखेंगे। जैसे ही आपका कंटेंट ख़त्म होता है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में कंक्लूड करेंगे अपने नोटिस को, और वहाँ पर क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट अगर आप साइन करना चाहें तो यू कैन अपना एक सिग्नेचर करेंगे अपने नाम के ऊपर, एंड उसके नीचे पोस्ट और डेजिग्नेशन। मतलब अगर उसमें जैसे आप स्कूल कैप्टन है, हाउस कैप्टन है, प्रिंसिपल है, टीचर है, जो भी वो नोटिस को इशू कर रहा है, जो भी उस नोटिस को का आप कह सकते हो जिससे जो वो नोटिस लिख रहा है, उसको अपना नाम और पोस्ट लिखना होगा। फॉलो द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को फॉलो करेंगे। नोटिस हमेशा टू द पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है? ये दिमाग में रखिएगा, नोटिस आपको हमेशा टू द पॉइंट लिखना है, बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। वॉट एवर इट इज नीडेड, जो नीडेड है बस उतना ही लिखना है। स्टैंडर्ड अब्रीविएशंस आर अलाउड, मतलब इसमें आपके खुद मैनुअल मेड अब्रीविएशंस नहीं चलेंगे। जो स्टैंडर्ड अब्रीविएशन है वही आप लिख सकते हैं। इंक्रीज विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस, मतलब इसको अच्छे से विजुलाइज कीजिए, कोशिश नहीं, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि वेन एवर यू राइट नोटिस, आप उसमें कटिंग नहीं करेंगे। यू विल नॉट कट द नोटिस, क्योंकि आपने कहीं भी कभी भी अगर नोटिस लगा देखा है तो उसमें कोई भी कटिंग नहीं होती है, उसमें कई बार करेक्शन होता है। तो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो वो नोटिस एकदम रेडी होना चाहिए कि वो जाके कहीं पेस्ट हो सके। तो आपको उसकी विजुअल अपील बढ़ानी है, उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ लोग पेंटिंग कर देते हैं, लाइक पेंटिंग इन द सेंस एक वर्ड को एक बार काटने की जगह 4 बार कट कर देते हैं, तो इस सब चीज़ों से बचिएगा। शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, मतलब अगर आपका वोकैबुलरी बहुत एनरिच नहीं है, बहुत ज़्यादा आप चीज़ें उस तरीके से नहीं लिख पाते हैं, तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए। जैसे आपने लिख दिया दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि दिस इज गोइंग टू सेलिब्रेट। अब डिटेल्स आर एज फॉलोज, इसके नीचे आपने कर दिया वेन्यू, टाइम, डेट, प्लेस। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कोई भी नोटिस लिखने का, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत एनरिच नहीं है, ठीक है? तो आपको वर्ड्स को बहुत लॉन्ग सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो मैंने 5 W's बताए थे उसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। पहला W है आपका व्हाट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सबसे पहले तो नोटिस जिस बारे में है कि क्या होने वाला है, कोई पब्लिक इवेंट होने वाला है, कोई सेमिनार होने वाला है, कोई वेबिनार होने वाला है, कोई कंपटीशन होने वाला है, कुछ खो गया है, किस बारे में है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब
वेयर इट विल टेक प्लेस, जैसे वो इवेंट कहाँ होने वाला है, किसी की हॉल में होने वाला है, ऑडिटोरियम में होने वाला है, पार्क में होने वाला है, वो डिटेल देंगे आप. व्हेन इट विल टेक प्लेस, प्लेस मतलब कब वो होने वाला है, आज होने वाला है, कल होने वाला है, 1 महीने बाद होने वाला है, वो आप बताएंगे. हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल टू अटेंड, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इस इवेंट के लिए एलिजिबल है, मतलब आप जो लोग आ सकते हैं उनका आप एक क्राइटेरिया या उनके बारे में लिख देंगे. whom टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, मतलब अगर हमें इस नोटिस को पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वी कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, वी कैन मेल दैट पर्सन, वी कैन गो एंड मीट दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो आई होप दिस 5 W's आर क्लियर. और इन 5 W's पे हमेशा ध्यान दीजिएगा वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ नोटिस. वैसे अभी ये 5 W's आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब मैं आपको एक, आप कह सकते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सैंपल ऑफ नोटिस दिया है मैंने. ठीक है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है, स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल. दैट स्कूल इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और उसी की डिटेलिंग आपको लिखनी है. अब ये डिटेलिंग आपको कैसे लिखनी है ज़रा आप इसमें देखिए. देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, देयर शुड बी अ बॉक्स. ठीक है, बॉक्स है. अब क्या मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आप हमेशा ये ध्यान रखिए बच्चों कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं. जैसे अगर उसमें लिखा होगा योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे on that particular date, on that particular time, in that particular place, and these many people are invited over there, when to come, how to come, these all things will be given. तो अगर ये सारी चीज़ें दी हैं तो क्वेश्चन में से तो आपको सब मिल गया, आपको बस उसको कॉपी डाउन करना है. तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा. सो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका, जब यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, दैट मीन्स जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ इज ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जो आपके फॉर्मेट का पार्ट है. तो आप कैसे लिखोगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल कॉमा लखनऊ. प्लेस का नाम ज़रूर लिखिएगा बच्चों, और किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम जब आप लिखोगे तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखोगे. जब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन का नाम है तो जब जैसे दिल्ली है, दिल्ली का डी कैपिटल कर दिया हमने, पब्लिक का बी, स्कूल का एस, बाकी सारे आप भले ही कैपिटल मत करिए, लखनऊ का एल कैपिटल कर दीजिए, मगर द फर्स्ट लेटर एंड द फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स. उसके जस्ट बाद मैंने आपसे बताया था कि आप वर्ड क्या लिखोगे, नोटिस. तो आप यहाँ पे नोटिस लिख दिया. नोटिस हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखोगे. नोटिस लिखने के जस्ट बाद आप एक डेट ऑफ इशू लिखोगे. अब जिस दिन वो नोटिस इशू हो रहा है, मतलब ये दिमाग हमेशा लगाइएगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस डे इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑन लाइक 20th ऑफ मई, तो हमेशा उसके पहले की डेट डालिएगा, क्योंकि नोटिस आप हमेशा किसी भी इवेंट या फंक्शन या कोई भी चीज़ होने के पहले देते हैं, तभी तो भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो जाएंगे. तो थोड़ा सा ये जो डेट है वो पहले डालें. डेट का फॉर्मेट देख लीजिए कैसे है, जैसे 18 मई है तो 18 मई 2016, तो 18 मई कॉमा 2016. अब इतना आई थिंक क्लियर हो गया. ठीक है, अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट मतलब आपकी जो कैची हेडिंग, क्यों भाई जाएं हम वहाँ पे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ठीक है, तो क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आपने ये हेडिंग दे दी. ये हेडिंग भी आपको क्वेश्चन से ही मिल गई. तो इतनी चीज़ों में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी. अब यहाँ पर बताया जा रहा है किसको इन्फॉर्म करना है, हमको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है. ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं. स्टूडेंट्स वैसे बेसिकली सारी चीज़ें दी रहती हैं, टॉपिक, स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन, आपका क्या नाम है, वो सब वहाँ पर मेंशन रहता है. सो यहाँ पर आपको देखिए सिंपल वर्ड्स में आप लिख देंगे, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन 5th June 2016 इन द स्कूल प्रेमाइसेस. सो किसको इन्फॉर्म करना है,
इन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। या सबसे अच्छी लैंग्वेज में आप स्टार्टिंग में ये लाइन एकदम रट लीजिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप लिख लीजिए, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको ईजी हो जाएगा। अब क्या मनाया जा रहा है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो वॉट मिल गया, डब्ल्यूज पे काम किया। कब ऑब्जर्व किया जाएगा? व्हेन? 5 जून 2016। कहाँ पर? स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर ही। अब किस तरीके से या फिर क्या इंस्ट्रक्ट करना है? ईच क्लास इज इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स फॉर मोर इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ये लास्ट की लाइन भी याद रख लीजिए कि फॉर मोर इंफॉर्मेशन, हमेशा लास्ट में लिखिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। मतलब आपको अगर ये नोटिस पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो यू शुड कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, जो भी जिसका नाम नीचे है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से फॉलो करनी है। अगर आप 5 Ws पे वर्क करेंगे, हेडिंग प्रॉपर देंगे, इस पे पूरे 4 नंबर मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर तरीके से बना रखा है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों अगर आपका थोड़ा सा वोकैबुलरी वीक है। The principal, the Sunshine Public School, Pune has invited the Inspector of Police Traffic to deliver a lecture on road safety in a school. Draft a notice in about 50 words informing the students to attend the lecture. अब पहले क्वेश्चन को समझिए, कौन लिखेगा नोटिस? द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिख रहा है, किस स्कूल का प्रिंसिपल है? सनशाइन पब्लिक स्कूल पुणे। तो हमको हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम मिल गया। उसने किसको इनवाइट किया है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को। तो किसको इनवाइट किया है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को। मगर ये कौन सा इंस्पेक्टर है? ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं है, ट्रैफिक पुलिस को। क्यों बुलाया है? टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी इन हर स्कूल। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया है, तो लेकिन यहाँ पे लिखा है इन हर स्कूल। दैट मीन्स यहाँ दिमाग लगाइए कि वो एक लड़की ही होगी। ठीक है, वैसे तो अगर नाम नहीं लिखा है तो आप नीचे XYZ लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नाम दिया जाता है। सो अब क्यों बुलाया गया है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को? डिलीवर करने के लिए एक लेक्चर, किस पर? रोड सेफ्टी पर। अब ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स टू अटेंड द लेक्चर। किसको इन्फॉर्म करना है? स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। अब आपको इस क्वेश्चन में पूरा नोटिस मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू यू विल ड्रॉ अ बॉक्स। देन स्कूल का नाम क्या है? इंस्टीट्यूशन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। सो सनशाइन पब्लिक स्कूल कॉमा पुणे, ये यहीं से सीधे डिट्टो आपको उतार लेना है। इसके नीचे आपको जस्ट इसके नीचे क्या लिखना रहता है? नोटिस। तो यहाँ पे सीधे मैंने नोटिस लिख दिया। इसके बाद डेट लिखनी है, तो डेट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो आप कोई भी डेट डाल दीजिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद की डेट मत डालिएगा। उसके पहले की डाल सकते हैं, बाद की नहीं। कैसे डेट डालनी है? डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, 18 जुलाई 20। ठीक है, या अगर आप ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो सिर्फ 20 लिखेंगे, नीचे कॉमा लगा रहे हैं तो 20 लिखेंगे। ठीक है, अब इतना तो हमें क्वेश्चन से मिला। अब हेडिंग हम क्या लिखेंगे? भाई हम किस लिए बुला रहे हैं? रोड सेफ्टी पे बुला रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ रोड सेफ्टी भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, मगर आपको अवेयर कराना है तो एक अच्छा टाइटल क्या होगा? रोड सेफ्टी अवेयरनेस। मतलब मेन मुद्दा ये है कि रोड सेफ्टी पे अवेयरनेस जगाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। अब ये आपका क्या हो गया? देखिए यहाँ मैंने फॉर्मेट लिखा है, ये आपका फॉर्मेट का पार्ट है और ये नीचे आपका फॉर्मेट का पार्ट है, और ये जो आपका है ये कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन, ये एक ही में आ जाएगा। अब हेडिंग तक तो क्वेश्चन से मिल गया। अब सीधी सी बात है, मैंने बोला था कि आप क्या याद कर लीजिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द टीचर्स, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द पीपल of the organization, this is to inform all the employees। तो ये लाइन याद कर लीजिए, ये क्योंकि हमेशा हम इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आई हैव गॉट अ ब्लैक शू। एक खो गया है, एक वो शू मिला है, जिसके पास जिसका हो वो आप पहचान बता के ले लें।
तो इसी तरह आप दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ तक मिल गया क्वेश्चन से ही। अब देखो, टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन रोड सेफ्टी, तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट अ लेक्चर विल बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड हमने यहीं से ले लिया, डिलीवर का डिलीवर्ड हो जाएगा किस पर, ऑन रोड सेफ्टी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स देम। बस इतना आपने लिख दिया, आपका काम खत्म। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स, अगर आप अब इसको वोकैबुलरी में लिखते, आपके अगर वोकैबुलरी एनरिच होती है तो हम इसको उसमें भी लिख सकते हैं, मगर ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ईजी वे में आपने लिख दिया, सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई और आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। बस ऐसे लिख दीजिए, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स। क्या क्या डिटेल्स देनी है आपको? आपको वेन्यू बताना है जो कि स्कूल ऑडिटोरियम ही है। इसके अलावा डेट बतानी है, क्यों जो ये डेट जो आपने डाली है इसके बाद की डेट होगी, तो हमने डेट क्या डाली, 25 जुलाई 20। हमेशा ध्यान रखिएगा डेट का फॉर्मेट यही रहेगा। टाइम बता देंगे, कोई भी टाइम दे दीजिए, 9 AM। अब रिसोर्स पर्सन कौन है, कौन डिलीवर करने आ रहा है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, तो यही आपने वहीं से लिख दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडर। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया निशा सिंह प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही तो है और यहाँ पे हर है, दैट मीन्स लेडी प्रिंसिपल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया निशा सिंह प्रिंसिपल, और आपका ये नोटिस जो है पूरा ओवर हो गया। अगर आपने एक ऐसा नोटिस लिखा है तो आई थिंक कि वो आपको 4 नंबर पक्का दिला देगा। So I hope this is clear to you now. You don't have any doubt while writing a notice. So please follow these tricks and tips to get full marks. And for more notifications and for videos like that, please do subscribe my channel so that you will get all the notifications. And please children, drop in your comments if you have any negative comments also, so you can please drop it. I can improve, I can take it and I can improve. So do watch it, like it, share it and subscribe it. Thank you so much. Be happy, be healthy, keep studying.